Children, I filled water in this small container which is having very small diameter. Why? Because I want to show you the surface of the water, which is quite obvious when it is kept in a container which is having very small fine bore container or fine diameter. Then the surface of the liquid has very obvious shape which you can easily observe, right? So now I am focusing on the surface only, and you observe the surface of the liquid. Can you see the surface of the liquid is having a specific shape? It is convex at its lower side, and obviously it is concave at its upper side and convex at its lower side. This convex shape of the lower surface indicates that pressure above the surface is more in comparison to the lower side of the surface. And this special shape of the surface is called meniscus, and this shape is because of the attraction force between the liquid molecules and attraction force of the container molecules. This special shape gives rise to a magical phenomena in the nature called capillarity, action of capillarity. This action of capillarity is responsible for the cooling action of water in the earthen pitcher. This action of capillarity is responsible for the water rising in the topmost leaf of the plant, because in the earthen pitcher the capillaries, fine bore capillaries are existing, because in plants very fine capillaries, veins of the plants are existing, and in such fine capillaries water rises on its own, and the reason behind it is the shape of the discussion of action of capillarity. So see what we have done. We placed a fine bore glass tube in the container of water. Now something magical happens. Glass molecules and water molecules are having very good bond. They attract each other strongly in comparison to attraction force between the two molecules of water. That means cohesive force is weaker than adhesive force, and this makes something magical with the water surface. Water surface rises up where it is in contact with the glass. Are you getting the point? What happened? Glass molecules attract water molecules strongly in comparison to
two water molecules. So adhesive force is greater than cohesive force, and result is that water surface rises up at the corners, at the edges where it is in contact with the glass, and shape of the water surface takes this shape. Actually, it looks in 3 dimension like this, which you have just seen. And if I make a model of the water meniscus, then it will look like this. A concave bowl. If you observe it from the side, then it will look convex at the lower side and concave at the upper side. So overall, this is the shape of the meniscus when water capillary is placed in a container having water. And this makes the things so different. You know what happens? This surface, the shape of this surface gives rise to force of surface tension, which starts pulling this surface up. And due to cohesive force, the whole water column starts rising up. इसको समझते हैं. ये वाटर सरफेस ऐसी हो गई कॉनकेव शेप की. ठीक, क्यों हो गई? क्योंकि ग्लास मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे थे इन कंपैरिजन टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. तो वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेनर में जहाँ जहाँ कांटेक्ट में थे थोड़ा थोड़ा ऊपर राइज कर गए, और जो सरफेस थी ना वो इस तरीके से देखो थोड़ा सा ग्लास की वॉल के साथ ऊपर ऊपर राइज कर गई, और ग्लास और वाटर के कॉम्बिनेशन से जो शेप ऑफ द वाटर सरफेस था वो ऐसा बन गया. अब क्या हुआ कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स प्लेन सरफेस पर, ये देखो शुरुआत में सरफेस जैसे प्लेन होती है वैसे ही थी, ये तो बाद में उसने ऐसा शेप ले लिया. तो जो प्लेन सरफेस पे सरफेस टेंशन का फोर्स प्लेन के अलोंग होता, वो अब इन एजेस पर इंक्लाइंड फोर्स हो जाएगा ना. सरफेस के अलोंग वो भी इसी एंगल पर इंक्लाइंड हो जाएगा. तो फोर्स वेक्टर्स कैसे दिखेंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन? पूरी सरफेस के अलोंग इस तरीके से हो जाएंगे. एट द कर्व्ड पार्ट द फोर्स विल बी इंक्लाइंड एट सम एंगल throughout the periphery of the surface, and result of this change will be that if you take any two forces diametrically opposite, take any two forces, right? This is the view which we will see on paper. This convex surface at the lower side, and one force at this side and one force inclined at this side. And we will resolve these two forces, and whatever discussion we will take for these two forces, that will hold for rest all the force vectors throughout the periphery. So let us consider only two forces and remove these other forces. Now observe this force. I resolve these forces vertically and horizontally, and we selected two forces which are at diametrically opposite sides. This is vertical component of this force and this is horizontal component of this force, right? Just observe the horizontal components of the two forces, because they are going to be cancelled. This is
The second force, vertical component and horizontal component. Now vertical components are still there, but horizontal component, you see, this horizontal component is cancelled by this horizontal component. So whatever is happening with these two diametrically opposite forces, the same will happen to every pair of diametrically opposite forces. Forces due to surface tension. That horizontal components will get cancelled and vertical component will remain unbalanced. So actually horizontal component is cancelled. This is gone. And since we resolved the original forces, तो इनको भी हटा देते हैं. तो अभी क्या बचा देखो, अभी बचे दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट इस मेनिस्कस को ऊपर खींचने लगते हैं और कैपिलरी में लिक्विड का लेवल अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है. ये एक्शन इस नेचर में कमाल कर रहा है. कैसे कमाल कर रहा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो किस लिए पिक्चर में आए, क्योंकि इसका शेप इस तरीके का हो गया, कॉनकेव बोल जैसा, वाटर का शेप, वाटर मेनिस्कस का शेप. और वाटर मेनिस्कस का शेप कॉनकेव बोल जैसा क्यों हो गया? बिकॉज एडहेसिव फोर्स वॉज स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्स. And now the result is that the forces, vertical component of all the forces due to surface tension are there, pulling the meniscus and along with it the water column up. So now we move to our diagram and observe and draw the force vector and observe what is the final result of this pull in vertically upward direction. तो वाटर मेनिस्कस का शेप इस लॉजिक से, और अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट एफ एफ, ठीक. और ऐसा पूरी मेनिस्कस में, ऐसा पूरी मेनिस्कस के अलोंग होगा. ये बात 3D में आपको बनाकर दिमाग में रखनी है. ये बात दिमाग में बना के रखनी है कि ये जो आर रेडियस का मेनिस्कस बनाना कर्वेचर, इसमें हर पॉइंट पर ये फोर्स एक्टिव होगा अलोंग द सरफेस पेरिफेरी पर. तो ये फोर्स कितनी लेंथ पर एक्टिव है? 2 पाई आर लेंथ पर. और आर किसका? ये बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ दो रेडियस हैं पिक्चर में. एक वो रेडियस जो इस कर्वेचर की है. देखो ये कर्वेचर एक बड़े से सर्कल का पार्ट है, तो उस सर्कल का, स्फेयर का, एक बड़े से स्फेयर का ये एक पार्ट है. तो उस स्फेयर का जो रेडियस होगा वो इस कर्वेचर का रेडियस होगा, ठीक. इस कर्वेचर का सेंटर यहाँ कहीं ऊपर होगा. अगर तुम साइड से देखो तो इस कर्वेचर का सेंटर यहाँ कहीं होगा, और उस सेंटर से ये रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होगी. लेकिन ये जिस कंटेनर में रखा है, अगर आप इस कंटेनर में देखो तो इस कंटेनर की अपनी भी तो कोई रेडियस है, जिसको हम फाइन बोर ट्यूब बता रहे हैं. तो ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंटेड है. और जिस सर्कल का ये कर्वेचर है, ये जिस सर्कल का कर्वेचर है, सर्कल बार बार कह रहे हैं बेटा, जिस स्फेयर का ये कर्वेचर है, उस स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंटेड है. इस चीज़ को दिमाग में क्लियर रखो कि एक स्फेयर है, उसका छोटा सा हिस्सा
ये मेनिस्कस है, छोटा सा पार्ट ये मेनिस्कस है, और उसका जो रेडियस है वो हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन एक रेडियस ये ट्यूब का भी है, ठीक है। तो जो ट्यूब का रेडियस है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंटेड है। ये जो फोर्स वेक्टर है इसको थोड़ा सा पीछे ले गए तो अगर देखो तो ये टेंजेंट हुआ ना इस कर्वेचर का, और इस टेंजेंट के दो हिस्से हैं। देखो एक पार्ट तो वाटर के अंदर है और एक बाहर है। तो जो वाटर के अंदर टेंजेंट का पार्ट है वो और ग्लास वॉल के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। कौन से दो प्लेन्स के बीच का एंगल? दिस एंगल बिटवीन द टेंजेंट इनसाइड द लिक्विड and the wall of the container is called angle of contact। तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। और ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये कंटेनर के नेचर और लिक्विड के नेचर पर फिक्स होता है। अगर लिक्विड का और कंटेनर का पेयर एक ही है तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम होता है। तो अब एंगल ऑफ कांटेक्ट के यहाँ होने की वजह से ये जो कंपोनेंट है वो देखो हो जाएगा F sin थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी F cos थीटा, राइट। सिमिलरली हियर दिस विल बी F sin थीटा and this component will be F cos theta। So now what is the final result? हम लोग इस डायग्राम को as it is इस डायग्राम में देखते हैं कि हमारे पास ये एंगल थीटा पर दो फोर्सेस थे, इनको हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व किया था, ठीक। जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो सही सलामत है F cos थीटा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर एक फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने डायमीट्रिकली ऑपोजिट फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कैंसिल हो रहा है, यानी साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहे हैं। और एंगल ऑफ कांटेक्ट रिवाइज कर लो, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट इनसाइड द लिक्विड एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो नाउ व्हाट इज लेफ्ट? ओनली F cos theta at every point of the periphery. At every point of periphery, F cos theta is there. And this force starts pulling the meniscus up. F cos theta starts pulling the meniscus up.
और ये जो मेनिस्कस ऊपर जाता है तो अपने साथ, क्योंकि कोहेसिव फोर्स है पूरे कॉलम में, तो मेनिस्कस अकेला थोड़ी जाता है, पूरे लिक्विड कॉलम को ऊपर ले जाने लगता है। तो एफ कॉस थीटा ने मेनिस्कस और लिक्विड कॉलम को ऊपर खींचना शुरू किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कंटेनर के लिक्विड के लेवल से, वाटर के लेवल से कैपिलरी के अंदर वाटर का लेवल ज़्यादा होने लगा। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये एफ कॉस थीटा इसको ऊपर खींचता ही चला जाएगा? नहीं, क्योंकि जो लिक्विड कॉलम का वेट है उसको एफ कॉस थीटा ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट ऊपर खींच रहा है। तो जब लिक्विड कॉलम का हाइट इतना हो जाए कि जो लिक्विड कॉलम का वेट है वो इस एफ कॉस थीटा के बराबर हो जाए, तो एफ कॉस थीटा ऊपर की ओर और लिक्विड कॉलम का वेट नीचे की ओर। तो लिक्विड कॉलम, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो इस कॉलम की, ये हाइट आपके लिक्विड कॉलम की हो गई h, डेंसिटी लिक्विड कॉलम की रो हो, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। तो mg को हम कैसे लिख सकते हैं? तो m को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी तो रो है, वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? वाटर कॉलम का वॉल्यूम हो जाएगा, ये सिलिंड्रिकल है शेप में, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, और h इसकी हाइट हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलिंड्रिकल कॉलम विल बी पाई आर स्क्वायर h। तो ये मास हो गया, और m इंटू जी हो गया रो पाई आर स्क्वायर h इंटू जी। अब यहाँ पे क्या मैकेनिज्म चल रहा है? एफ कॉस थीटा ऊपर खींच रहा है, और लिक्विड कॉलम जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है बढ़ रहा है, और लिक्विड कॉलम का मास बढ़ रहा है, तो वेट बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब लिक्विड कॉलम, जिसको ये एफ कॉस थीटा मिलकर ऊपर खींच रहा है, ये इस वेट के बराबर हो जाएगा, और तब लिक्विड का कैपिलरी में ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। तो हमारी मैकेनिज्म क्या बनी कि व्हेन एफ कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द लिक्विड कॉलम, देन द हाइट ऑफ द लिक्विड बिकम्स स्टेशनरी, स्टॉप्स चेंजिंग। तो चलो, जो बात हमने लिखी और यहाँ देखी उसको हम मैथमेटिकली अब लिखते हैं। एफ कॉस थीटा, अब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है क्या? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एफ कॉस थीटा है, और इसको किसके बराबर करना है? कॉलम के वेट के। अब जब हमने कॉलम के वेट के बराबर किया तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एफ को हम कैसे लिख सकते हैं? सरफेस टेंशन इनटू वो लेंथ जिस पर ये फोर्स लग रहा है, और अभी हमने देखा था कि ये फोर्स किस पे लग रहा है? इस पूरी पेरिफेरी पे ये फोर्स एक्टिव है, यानी 2 पाई, और पेरिफेरी कैसे होगी? ये जो ट्यूब का रेडियस होगा, यहाँ देखो, ये जो ट्यूब का रेडियस है ये इसकी पेरिफेरी को डिसाइड करेगा। यहाँ देखो, ट्यूब का रेडियस r इसकी पेरिफेरी को डिसाइड करेगा, 2 पाई स्मॉल r। तो यहाँ पे हमने लिखा कि f cos थीटा इज रिटन एज सरफेस टेंशन। f कैसे लिखा गया? सरफेस टेंशन इनटू l, l मतलब 2 पाई r, फिर cos थीटा, और हमने अभी अभी देखा था कि m को हमने लिखा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम
pi r square h cylindrical volume of the water column into g। अब जो कैंसिल हो रहा है ये r गया, पाई गया और कुछ नहीं, तो h कितनी हाइट लिक्विड कैपिलरी में ऊपर जाएगा वो मिल गया 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। ये वो एक्सप्रेशन है जो डिराइव भी किया जाता है, बहुत पूछते हैं इसका डेरिवेशन, और साथ में न्यूमेरिकल्स खूब आते हैं इस पर, लॉजिकल क्वेश्चंस खूब आते हैं इस पर। तो अब इस एक्सप्रेशन के एक एक टर्म को आपको लिखना पड़ेगा जब कभी, और केवल एक्सप्रेशन भी पूछते हैं एक नंबर में। तो T इज सरफेस टेंशन, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड R इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ये चीज़ ध्यान करनी है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कुछ अभी हमने समझा उसको एक बिल्कुल अलग लॉजिक से भी समझा जा सकता है, और दोनों लॉजिक अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आते हैं। मतलब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमको दोनों लॉजिक समझने पड़ेंगे, और जिस लॉजिक का जहाँ इस्तेमाल हो रहा होगा वहाँ उसका यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पूरी मैथमेटिक्स देखो, और अब मैं तुम्हें ये बताने जा रही हूँ कि अगर आपने पूरा लेक्चर सुना तो आप नोट्स में उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे कि आपका कोई पॉइंट छूटे नहीं जब आप रिवाइज़ करें। और कम से कम नोट्स के हर पॉइंट को आप 4 से 6 बार रिवाइज़ करेंगे तो आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठे होंगे उस एग्ज़ाम में आप उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पाएंगे जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछी होगी। और वो इंफॉर्मेशन याद नहीं आती है तब भी क्वेश्चंस पूरे नहीं होते हैं, सॉल्यूशन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर आप 4 से 6 बार जिस चीज़ को रिवाइज करेंगे वो चीज़ बहुत प्लान्ड होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स भी हों और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ना हो। ठीक, तो चलो देखते हैं कि जो कुछ हमने समझा उसको पॉइंट वाइज, पूरा लेक्चर हमने सुना और लेक्चर सुनने के बाद पॉइंट वाइज कैसे उसको हम एक एक पॉइंट को शॉर्ट में लिखेंगे और टाइम भी नहीं लगे और रिवीजन भी जल्दी हो पाए, इस तरीके से लिखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। यहीं से तो सारा प्रॉब्लम कह लो या जादू कह लो वो शुरू हुआ था। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? That water rises along the wall of the glass container and water surface takes shape of concave bowl, and this water surface is specifically called meniscus. Now what is a consequence of this shape of the meniscus? That F cos theta is unbalanced and it starts pulling the liquid column up till it is not balanced by the weight of the liquid column. So we will write force due to surface tension pulls water column up in the capillary. Are you getting how to write the notes? Pulls water column up in the capillary. Right? And F cos theta, when it is balanced by the gravitational pull of the water column, then this action stops. As a result, now just keep this equation in the box and write the most important thing, which is 2 marks definition of action of capillarity. That is, rise of liquid in capillary due to surface tension is called action of capillarity. लेकिन actually capillarity is either rise or fall. अभी हम लोग देखेंगे.
So rise or fall of liquid in the capillary due to surface tension is called action of capillarity. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, ठीक, बहुत पूछी जाती है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एक्शन ऑफ कैपिलैरिटी और कैपिलैरिटी? तो राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ड्यू टू सरफेस टेंशन. अब इस डेरिवेशन को भी पूछते हैं कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ द कॉलम, लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी. तो हम इसको पूरा कर लेते हैं, हमें पता है, अभी हम करके आए हैं. तो वीडियो पॉज करो और रिवाइज करो, साथ साथ लिखते जाओ या मेरे साथ लिखते जाओ कि एफ कॉस थीटा, इसको हम यहाँ पे करते हैं, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. फटाफट लिखते हैं, ये तो बहुत आसान था. एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. फिर एफ की जगह हम लिखेंगे सरफेस टेंशन इनटू वो लेंथ जिस पर ये लग रहा है साथ में कॉस थीटा इज इक्वल टू मास की जगह हम लिख देंगे डेंसिटी इनटू सिलिंड्रिकल कॉलम का वॉल्यूम इनटू जी. फिर जो कैंसिल हुआ था उसे कैंसिल कर दिया और h की वैल्यू आ गई 2t कॉस थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर, रो जी आर, ये वैल्यू आ गई. इसको हमने बॉक्स में किया और साथ में हमने लिख दिए सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स कि वो क्या क्या हैं. तो पहला इम्पॉर्टेंट टर्म्स है सरफेस टेंशन, दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म है थीटा, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तीसरा इम्पॉर्टेंट है रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. और चौथा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है आर, विच इज रेडियस ऑफ कैपिलरी. तो ऑब्वियसली ये जो टर्म है ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना डेफिनेशन ऑफ कैपिलैरिटी. तो अब एंगल ऑफ कांटेक्ट का पॉइंट आगे ऐड कर देंगे हम लोग कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सरफेस ऑफ कंटेनर इनसाइड द लिक्विड. एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट, कहाँ पर है वो टेंजेंट? एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और दूसरा सरफेस ऑफ कंटेनर पर कंटेनर की सरफेस का वो हिस्सा जो लिक्विड के अंदर है. क्यों? क्योंकि कंटेनर की सरफेस ऊपर भी है लिक्विड के और नीचे भी. और तुम देखो कि टेंजेंट का ये एंगल और ये एंगल अलग अलग हो जाएगा. तो टेंजेंट और सरफेस का कंटेनर की सरफेस का दैट पार्ट विच इज इनसाइड द लिक्विड, तो ये एंगल कॉन्टैक्ट एंगल होगा. और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है. इसको हम हाईलाइट करेंगे जब हम रिवाइज करेंगे कि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में से है. तो एक ये और एक ये दो तो डेफिनेशन हो गई. और इस पूरे डिस्कशन को पॉइंट वाइज लिखने से हम उस हर पॉइंट को रिवाइज करेंगे जिस पर कोई क्वेश्चन हो सकता है, न्यूमेरिकल में, रीजनिंग क्वेश्चन में. तो अब हम ये पूरा डिस्कशन पॉइंट वाइज नोट करेंगे. वीडियो पॉज करो और नोट करो और धीरे धीरे सीखो कि लेक्चर सुनते हुए कैसे बहुत प्रेशियस नोट्स बनते हैं और उनको कम से कम कई बार रिवाइज करते हैं, जिससे कि हमारा प्रिपरेशन ऐसी हो कि क्वेश्चन पेपर में देखते ही हमको खुशी हो कि क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ गया और हमको हमारी मेहनत को आज दिखाने का मौका मिल रहा है.
But nature's miracle does not stop here. जब हमने पानी के कंटेनर में कैपिलरी डाली तो पानी ऊपर चढ़ गया, लेकिन जब हमने मरकरी के कंटेनर में कैपिलरी डाली तो पहली चीज हमको क्या देखने को मिली कि इसकी सरफेस तो वाटर की सरफेस से बिल्कुल डिफरेंट है। वो इस तरीके का एक बोल था और ये इस तरीके की सरफेस बनी, उल्टी बोल। और ऐसा क्यों हुआ? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। मरकरी के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत वेल बॉन्डेड, बहुत स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, और ग्लास के मॉलिक्यूल से ज़्यादा इंटरैक्ट ही नहीं करते। जब ये ग्लास के कंटेनर के कांटेक्ट में आए तो ये सब आपस में स्ट्रांगली सिमट गए, जस्ट टू टेल ग्लास मॉलिक्यूल्स डोंट डिस्टर्ब अस। और उसकी वजह से, क्योंकि कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग था, कहीं ज़्यादा स्ट्रांग था, तो जो सरफेस बनी वो ऊपर की ओर कॉन्वेक्स और नीचे की ओर कॉनकेव। और इसका असर ये हुआ कि लिक्विड की सरफेस कैपिलरी में ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने लगी। अब यहाँ पर भी हम जो सरफेस टेंशन का फोर्स था उसके थ्रू बता सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया लॉजिक, बढ़िया समझ में आने वाला है प्रेशर डिफरेंस का लॉजिक। तो अब हम वाटर मॉलिक्यूल पर भी वो लॉजिक समझेंगे और मरकरी पर भी वो लॉजिक समझेंगे। तो क्योंकि हम मरकरी का केस डिस्कस कर रहे हैं तो पहले मरकरी पर ही उस लॉजिक को अप्लाई कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इस सरफेस की शेप पर। ऊपर क्या प्रेशर था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इसकी शेप क्या ये नहीं बता रही है कि यहाँ प्रेशर इधर से ज़्यादा है तभी तो ये बल्ज आउट हो रहा ऊपर की ओर। तो यहाँ पर प्रेशर कितना ज़्यादा है? P0 से तो ज़्यादा है, पर कितना ज़्यादा है? हमने बबल के केस में देखा और ड्रॉप के केस में देखा कि अगर इस सरफेस का रेडियस, इस स्फीयर को पूरा करो, ये सरफेस जिस स्फीयर का हिस्सा है उस स्फीयर को पूरा किया। ये 3D पॉइंट है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है। ये जिस बड़े स्फीयर का पार्ट है उसकी रेडियस, जिसे हम कैपिटल R से दिखाते हैं, उसकी रेडियस कैपिटल R। तो हमको पता है ना कि ये शेप बताता है कि इधर इस तरफ से 2T/R प्रेशर ज़्यादा है। 2T/R क्योंकि एक ही सरफेस है। हमें याद है कि दो सरफेस होती तो ये 4T/R होता। तो अब देखो कितनी क्लियरली समझ में आता है कि P0 + 2T/R प्रेशर इस पॉइंट पर है, जबकि इससे ठीक ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर है P0। लेकिन इस पॉइंट के पैरेलल यहाँ और यहाँ पे भी प्रेशर तो P0 है। और जरा इस पॉइंट और इस पॉइंट के पैरेलल दो पॉइंट्स ले लो, इन दोनों पॉइंट्स को देखो और इस शेप को देखो। ये शेप बता रहा है कि यहाँ P0 है तो यहाँ भी P0 है, यहाँ P0 है तो यहाँ भी P0 है, लेकिन यहाँ P0 + 2T/R है। अब हमने क्लास 7th में 8th में पढ़ा था कि लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागता है। तो यहाँ P0 + 2T/R और यहाँ P0। So liquid will start moving out of the capillary from high pressure to low pressure. Liquid moves from high pressure, that is P0 + 2T/R, to low pressure. ठीक,
तो लिक्विड ने बाहर आना शुरू किया, लेकिन कब तक बाहर आएगा? ऑब्वियसली जब ये जो लिक्विड में इसकी हाइट में डिक्रीज हुआ है, वो डिक्रीज की वजह से ये जो पॉइंट है यहाँ पर 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स कंसीडर करो। इन पॉइंट्स पर जब लिक्विड का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो ये नीचे आना रोक देगा। तो इन पॉइंट्स पर लिक्विड का प्रेशर कब बराबर हो जाएगा? जब ये जो हाइट में डिक्रीज हुआ, मान लो h डिक्रीज हुआ, ये जो हाइट में डिक्रीज हुआ उसकी वजह से कितना प्रेशर लिक्विड का इस पॉइंट पर कम हो गया? h रो जी। ये अगर हाइट में डिक्रीज हुआ तो जो प्रेशर रिड्यूस हुआ, प्रेशर रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉलम हाइट h, कितना रिड्यूस हुआ? h रो जी। पढ़ा है हम लोगों ने कि अगर h हाइट का कॉलम गायब हो गया तो कितना प्रेशर यहां से गायब हो गया? रो जी h। और रो जी h जो गायब हुआ, अगर वो 2T/r के बराबर होगा तभी तो ये इक्वालिटी आ गई। जो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर था 2T/r, वो अगर गायब प्रेशर के बराबर हो गया तो एक्सेस प्रेशर ने गायब प्रेशर से बैलेंस होकर तीनों पॉइंट पर प्रेशर इक्वल कर दिया। और ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मोशन था लिक्विड का, वो रुक जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है कि एक्सेस प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द रिड्यूस्ड प्रेशर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक्सेस प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो कैपिटल R था वो इस बड़े स्फीयर का रेडियस था ये, लेकिन हम तो इस कैपिलरी की डायामीटर को मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स से, स्क्रू गेज से। तो हम चाहते हैं कि ये जो स्फीयर है जिसका रेडियस हमको नहीं पता और हम मेजर भी नहीं कर सकते, वो रेडियस किसी तरह से इस कैपिलरी के रेडियस के टर्म्स में चेंज हो जाए। तो हमने क्या किया, जियोमेट्री लगाई। और कैसे लगाई, चलो इसको, इस डायग्राम को यहाँ साइड में बनाते हैं। कैपिटल R को कैपिलरी के रेडियस से कनेक्ट करने के लिए हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में क्या पढ़ा था। देखो कि जो टेंजेंट है उसके और लिक्विड के सरफेस के बीच का एंगल, लिक्विड की वो सरफेस जो लिक्विड के अंदर है, और कंटेनर की सरफेस और टेंजेंट के बीच का एंगल। तो टेंजेंट और कंटेनर की सरफेस के बीच का एंगल एंगल ऑफ कांटेक्ट है, और कंटेनर जो लिक्विड के अंदर हो। तो देखो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। ये टेंजेंट और ये कंटेनर की वॉल, इनके बीच ये जो एंगल है ना, ये इसको मैं ऐसे कलर कर देती हूँ। ये एंगल है थीटा। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो छोटा सा ग्रीन एंगल तुम्हें दिख रहा है, इसको मैं अगर x कहूँ तो देखो ये और ये 90 है, ये x। तो असल में ये पूरा ब्लैक एंगल क्या हुआ, 90 प्लस x। तो थीटा इज 90 प्लस x। तो x क्या हो गया, थीटा माइनस 90। ठीक, अब असल में हम इस ट्राइंगल में आना चाहते हैं। ये जो शेडेड ट्राइंगल है ना, इसमें हम आना चाहते हैं। और शेडेड ट्राइंगल में तुम देखो ये x है, ये r है और ये स्मॉल r है। तो अगर तुम इस एंगल 90 माइनस x की वैल्यू लिखो तो तुम लिखोगे cos
90 minus x is equal to cos 90 minus x is base upon hypotenuse, that is small r upon capital R. cos 90 minus x, 90 माइनस एक्स करो तो अपने आप 180 माइनस थीटा आ जाता है। तो 90 माइनस एक्स की जगह आप इसको लिख दोगे cos 180 माइनस थीटा यानी cos थीटा। cos थीटा इज r अपॉन कैपिटल R। तो अब क्या करेंगे हम कि cos थीटा की इस वैल्यू से यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू लिख देंगे स्मॉल r अपॉन cos थीटा। तो 2t और ये हो गया स्मॉल r अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू h रो जी। तो h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, वही जो हमें अभी पिछले लॉजिक और डिस्कशन से मिली थी, दैट इज 2t cos थीटा अपॉन रो जी r। लेकिन यहाँ पर हमने इस सरफेस की वजह से जो प्रेशर का डिफरेंस है, उस प्रेशर के डिफरेंस को 3 एक ही लेवल के पॉइंट्स पर कंपेयर किया और ये देखा कि हाई प्रेशर से लिक्विड लो प्रेशर की ओर रश करेगा तब तक जब तक ये जो डिसेंडिंग ऑफ द लिक्विड है और उसकी वजह से जो H रो जी गायब हो रहा है वो डिक्रीज इन प्रेशर इस एक्सेस प्रेशर को बैलेंस न कर दे। जब 3 एक ही लेवल के पॉइंट्स में प्रेशर बराबर हो जाएगा, ये जो 2t/r था ये रो जी एच के गायब होने से बैलेंस हो गया, तीनों पर प्रेशर बराबर हो गया, तब लिक्विड का बाहर आना बंद हो गया और इस वजह से मरकरी कॉलम नीचे आता है। तो प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पर बेहतर एक्सप्लेन करता है कि मरकरी का कॉलम नीचे क्यों आता है ग्लास कैपिलरी को जब मरकरी के कंटेनर में रखते हैं। तो अब सेम लॉजिक अगर तुम यहाँ इस्तेमाल करो वाटर में, सेम लॉजिक वाटर में यूज करो तुम, तो वाटर में कैसे यूज करोगे, यहाँ पी नॉट और यहाँ पी नॉट माइनस 2tr। तो अब तुम 3 इक्वल लेवल पर पॉइंट्स ले लो, यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक और यहाँ पर पी नॉट माइनस 2tr। तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लिक्विड रश करेगा, तो अब बाहर से लिक्विड अंदर जा रहा है तो राइज करने लगेगा लिक्विड कॉलम। और कब तक राइज करेगा, जब तक ये हाइट इतनी ना हो जाए कि जो एक ही पॉइंट पर, एक ही लेवल पर 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो 2t/r का डिफरेंस था उसको रो जी एच ने बैलेंस नहीं कर दिया। यहाँ पे 2t/r का जो डिक्रीज था वो h रो जी ने, इस वाटर कॉलम ने इस एडिशनल प्रेशर को इस पॉइंट पे डाला और ये जो डिक्रीज था, डिफरेंस था, इसको बैलेंस कर दिया। और बैलेंस करने के बाद जब हम इस तरीके से बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप हमको जियोमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। कैपिटल R को ट्यूब के कॉलम के लिक्विड के जो कैपिलरी है उसके रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हमको कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा का जो ये एडिशनल स्टेप है ये हमको करना पड़ता है। यहाँ पर देखो, और यहाँ पर थोड़ा इजी है, कैसे, ये थीटा, ठीक, और ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, फिर टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो यहाँ पर ये थीटा बड़ी इजीली इस ट्रायंगल में अंदर आ जाता है। और उसके बाद सेम लॉजिक, कॉस थीटा इज स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा।
और सेम लॉजिक कि यहाँ पर जो डिफरेंस था, यहाँ पर जो डिफरेंस था 2T/R का, यहाँ पर 2T/R कम था, तो वाटर कॉलम ने राइज करके एडिशनल जो रो GH क्रिएट किया उसने इस कमी को भर दिया। और जब ये कमी पूरी हो गई तो वाटर का अंदर जाना बंद हो गया, क्योंकि तीनों पॉइंट्स पर प्रेशर P0 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 हो गया। और उसके बाद कैपिटल R की जगह पर हमको ये वैल्यू रखनी पड़ी। तो फिर से हमारे पास H की वैल्यू आ गई 2T cos थीटा अपॉन रो GR। तो इस तरीके से हमने डेरिवेशन को डिफरेंट लॉजिक से समझा, लेकिन आप जब डिराइव करने को आए तो कोई भी एक लॉजिक यूज कर सकते हैं। सो नाउ आई एम शेयरिंग द होल डिस्कशन इन फ्रंट ऑफ यू। Go through it, pause video, go through it again and again. तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट पर और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बात अभी बाकी है।